Hello everyone. In this video, we will learn about the impact of corporate social responsibility on profitability of a company. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy, where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's start the discussion. CSR and profitability. Today we will learn how CSR affects the profitability of a company. As you know, CSR is a balanced approach for the organization to address economic, social, and environmental issues in a way that aims to benefit people, communities, and society. And profits? Profit is the net income of a company after deduction of tax. So there is a positive relationship between CSR and profitability. It means CSR brings profits to the organization, or we can say that CSR increases profitability of the organization. CSR और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इसका मीनिंग है कि CSR एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है. Some of the factors affecting the profitability of the company. Now we will discuss some factors which increase the profitability of a company. Like if we reduce the expenses, अगर expenses reduce होते हैं तो profits increase होते हैं. More customers means the more sales. अगर एक organization के customers increase होते हैं, that will result into more sales and that will increase the profitability of a company. More production in same period of time with same resources. अगर एक सेम पीरियड ऑफ टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, so that will be due to higher productivity and higher operational efficiency. वह कब होता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज़्यादा है, मीन्स वह कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है. हायर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी. और दूसरा, अगर एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, मीन्स एम्प्लॉयज़ भी सेम रिसोर्सेज में सेम पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इज हायर, देन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इज इंक्रीज्ड. मैनेज वेस्ट ऑफ योर कंपनी मीन्स रिड्यूस द वेस्ट एंड सेल ऑफ इट एप्रोप्रिएटली. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करता है, मीन्स वह एक तो वेस्ट को रिड्यूस करता है कि कम से कम वेस्ट हो, और दूसरा जो वेस्ट होता है उसको सेल ऑफ करता है ताकि वेस्ट को सेल करने पर भी वह प्रॉफिट अर्न कर सके, तो उससे भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है. ये है कुछ फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. नाउ विल सी how these factors are influenced by adopting CSR practices by a company and how that company can derive the profits. These are the examples of some of the CSR initiatives that a company may adopt, like educational activities. Avoid unethical and unsocial activities. एक फॉर्म एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी के डिफरेंट मेंबर्स को, अनएथिकल और अनसोशल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करती है. हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन, इस तरह की जो नेचुरल इवेंट्स हैं उसके जो विक्टिम्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कर रही है. upliftment of weaker sections of the society, improve health, education and cultural life of the society, etc. So these are the some of the CSR initiative that a company can provide. And if a company implement these CSR initiatives, then the company will get the CSR benefits like good brand image in the society. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इन CSR इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करती है तो क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिलते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इमेज सोसाइटी में इंक्रीज होती है. मोर पीपल विल प्रेफर टू बाय दैट a product of that organization. Increased public trust and confidence. जनरल पब्लिक का विश्वास उस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज होता है. इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. उस ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंक्रीज होती है. व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? मीन्स कस्टमर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स प्रेफर करते हैं बाय करना, और उससे उसकी सेल्स इंक्रीज होती है. तो वह कब होगी? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब इंक्रीज होगी? कब लोग उसके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे? जब उसकी ब्रांड इमेज अच्छी होगी सोसाइटी में और पब्लिक का उसमें विश्वास बढ़ता है. वह कब हो सकता है?
जब एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी जो कि सोसाइटी के लिए वह कर रही है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रही है, मीन्स सीएसआर इनिशिएटिव्स को वह इम्प्लीमेंट कर रही है, देन इट विल गेट दीज बेनिफिट्स। और उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंक्रीज होने से कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती है एंड दैट विल लीड टू द प्रॉफिट्स। डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, वह फर्म अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकती है अपने कॉम्पिटिटर्स से। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोराल, और उससे एम्प्लॉयज का मोराल भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ता है। So these CSR initiatives will attract more customers. It will result into more sale. More customers means there will be more sales and hence more profits. So the implementation of the CSR initiatives, and by getting the benefits of these CSR initiatives, the company can increase its profits. Another example of CSR initiatives like the conservation of electricity. Use of solar system for producing electricity, avoid wastage of electric power. Like a company इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को बचा रही है, कैसे वह बिजली को बचा सकती है, वह इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए अपना एक सोलर सिस्टम यूज कर रही है। इसकी बजाय कि वह गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जा रही है उसको यूज ना करके अपने जो खर्चे हैं उसको सेव करने के लिए सोलर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज का वह यूज कर रही है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, दूसरी इलेक्ट्रिक पावर की वेस्टेज को कम किया जा रहा है। वह कैसे कर सकती है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज यूज किए जा रहे हैं वह ऐसे अप्लायंसेज यूज करते हैं जिसमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो वह इलेक्ट्रिक पावर की वेस्टेज को अवॉइड कर सकती है। So how the organization will get the CSR benefits by implementing these initiatives? It will result into energy saving. Energy saving होगी, reduced energy bill. It will have to pay reduced energy bill, and it will provide a platform for innovation. Like एक ऑर्गेनाइजेशन सोलर सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रही है, सोलर सिस्टम लगा रही है अपना, या फिर कुछ इस तरह के इनोवेटिव मेथड्स वह डेवलप कर रही है जिसके द्वारा वह इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकती है। और जब एक फर्म इस तरह के इनोवेटिव मेथड्स को इम्प्लीमेंट करती है, मीन्स वह नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रही है, मैन मेड रिसोर्सेज को कम कर रही है, तो वह सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी आगे बढ़ती है, वह एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। तो दैट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। एंड हाउ द फर्म विल गेट द प्रॉफिट्स? These CSR benefits will lead to increase in profits in terms of reduced energy expenses. कंपनी के जो energy expenses हैं वो reduce हो जाएंगे and hence more profits है। तो इस तरह से ये CSR initiatives एक organization की profitability को increase करते हैं because reduced energy expenses will lead to more profits. Another CSR initiative, it can be recycling of waste materials. जो वेस्ट मटेरियल है एक ऑर्गेनाइजेशन का को थ्रो ना करके वह उसको रिसाइकिल कर रही है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी, द फर्म इज प्रोड्यूसिंग द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल एमिशन। एक फार्म के द्वारा जो भी वेस्ट डिस्पोज लाइक जो गैसेज डिस्पोज की जाती हैं एनवायरनमेंट को जो कि हार्मफुल हो सकती हैं उस पर उसमें रिडक्शन किया जा रहा है बिकॉज वह कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेजर्स अडॉप्ट कर रही है इंडस्ट्रियल एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। So these are some of the CSR initiatives. And how it will get CSR benefit? Waste reduction. जब एक फर्म अपने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल कर रही है तो उसका जो वेस्ट है वो रिड्यूस होता है एंड दैट विल लीड टू क्लीन एनवायरनमेंट। इस तरह से वह एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। एंड हाउ इट विल गेट द प्रॉफिट्स? रिड्यूस्ड वेस्ट एक्सपेंसेस एंड हेंस मोर प्रॉफिट्स। जब एक फर्म वेस्ट रिड्यूस करेगी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी या इंडस्ट्रियल एमिशन में रिडक्शन करेगी, सो इससे जो उसका वेस्ट एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस होंगे एंड हेंस मोर प्रॉफिट्स विल बी देयर। फर्दर, if a firm when the firm will get the benefits in term of profit like waste उसका रिड्यूस हुआ है उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले हैं, इसी तरह से एक फर्म
वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे? एक फार्म के पास जो वेस्ट है वह उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, लाइक ग्लास, मेटल, पेपर, प्लास्टिक एंड ऑर्गेनिक, एंड इट कैन अर्न द प्रॉफिट बाय सेलिंग इट ऑफ और रिसाइकलिंग इट। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए जो वेस्ट है हो सकता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो रॉ मटेरियल। एक कंपनी है जो कि मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है, प्रेसेस मैन्युफैक्चर करती है, और वहाँ पर जो आयरन है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े उनके वेस्ट के रूप में निकलते हैं, तो वह उसको सेल कर सकती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, और वह उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकती है, वो आयरन प्लेट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। इसी तरह से एक कंपनी है जिसके लिए जो यूज्ड पेपर है वह वेस्ट है, तो उसको रिसाइकल कर सकती है, उसको सेल कर सकती है। तो दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग द कार्डबोर्ड्स और प्रोड्यूसिंग द पेपर, so they may use it as a raw material. So a farm can do the waste management, and by doing the waste management they can also earn profits. Another example of CSR initiative is efficient operations, operational efficiency, higher productivity. अगर एक फार्म एफिशिएंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और हायर प्रोडक्टिविटी की तरफ जाती है, तो व्हाट द सीएसआर बेनिफिट्स दैट विल गेट? ड्रॉप इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। उस फार्म की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज प्रॉफिट, दैट विल लीड टू रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम एंड हैंस हायर प्रोडक्शन। जब एक फार्म की ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी तो उसका जो प्रोडक्शन टाइम है वह रिड्यूस होगा और हायर प्रोडक्शन होगा, मीन्स कम समय में वह ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। पहले वह जितने समय में प्रोडक्शन कर रही थी उससे कम समय में वह उतना ही या उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस एंड हैंस मोर प्रॉफिट्स। जो फर्म मटेरियल यूज कर रही थी या फिर जो उसके एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, उससे प्रॉफिट्स इंक्रीज। Let's take some more examples of CSR initiatives like fair wages and salaries. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस और सैलरीज देती है, जो इतना जितना वो काम कर रहे हैं उसके अनुसार उनको सैलरीज और वेजेस दिए जा रहे हैं फेयर अमाउंट में, they are providing good and safe working conditions to the employees, adequate service benefits like housing, medical, etc. employees को एक्सेप्ट द सैलरी उनको सर्विस बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं, लाइक हाउसिंग, उनको हाउस दिया जा रहा है रहने के लिए, मेडिकल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मेडिकल सर्विसेज दी जा रही हैं, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स को ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का राइट दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन लाइक ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, एम्प्लॉयज़ को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं कि वह एजुकेशन ले सकते हैं या फिर उनकी ट्रेनिंग और प्रमोशन के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, वर्कर्स का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है, मीन्स जब भी डिसीजन लिए जाते हैं वर्कर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वर्कर्स को भी राइट है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। So these are some of the CSR initiatives and how the firm will get the benefit of this: attracting, retaining and maintaining a happy workforce. एक फर्म ज़्यादा अच्छी वर्कफोर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मीन्स एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के इच्छुक होंगे, वह अपनी वर्कफोर्स को ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन कर सकती है और एम्प्लॉयज़ वहाँ पर खुशी से काम करना पसंद करेंगे, दे विल फील मोर सेटिस्फाइड ओवर देयर। एम्प्लॉय रिटेंशन ज़्यादा होगा, मीन्स एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे, दे विल वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर देयर। इनहांस्ड रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। स्टेक होल्डर्स बिकॉज एम्प्लॉयज भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, दैट मे बी द कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, एंड देयर आर सो मैनी स्टेक होल्डर्स, वे है जिनका इंटरेस्ट है, उनके साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं जब एम्प्लॉयज को अच्छी सर्विसेज दी जाती हैं, उनको एडुकेट बेनिफिट्स दी जा रहे हैं, फेयर अमाउंट ऑफ सैलरीज दी जाती हैं, अच्छी कंडीशंस दी जा रही हैं काम करने के लिए, तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं और रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा होते हैं। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स एंड सम बेनिफिट्स ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। कैसे इससे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? इंक्रीज्ड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जब एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड फील करते हैं बिकॉज उनको
सही रेमुनरेशन दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के और सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मींस वह कम समय में ज़्यादा काम करेंगे और अच्छा क्वालिटी वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से कम समय में जब ज़्यादा काम होगा और अच्छा काम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे बिकॉज उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस्ड हायरिंग एंड एट्रिशन एक्सपेंसेस, एक फर्म के हायरिंग और एट्रिशन एक्सपेंसेस भी रिड्यूस होते हैं ड्यू टू दीज इनिशिएटिव्स बिकॉज व्हेन द एम्प्लॉयज फील मोर सेटिस्फाइड तो ऑर्गेनाइजेशन में वे ज़्यादा लंबे समय तक काम करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो और वह जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है और उस पर जो एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं लाइक रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इस तरह के एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन के रिड्यूस हो जाते हैं। और जब एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे देन द फर्म विल गेट मोर प्रॉफिट। Let's take some more examples of CSR initiatives like abide by the laws of the nation. एक देश में जो भी लॉज बनाए गए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लाइक लेबर लॉज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और बिजनेस को वह लॉज फॉलो करने हैं। अगर वह ऑर्गेनाइजेशन उन सभी लॉज के अनुसार काम करता है, पे टैक्सेस ऑनेस्टली एंड इन टाइम, टैक्सेस को ऑनेस्टली और टाइम से पे किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनको जो करप्शन में इन्वॉल्व है उनको अवॉइड किया जा रहा है, एनकरेज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन उनको एनकरेज करता है, एंड अवॉइड मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, और जो मोनोपोली प्रैक्टिसेस हैं उनको अवॉइड किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। So these are the initiatives which our organization may take, and what will be the benefit? It will lead to enhancing your influence in the industry. तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में वह काम करें, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कोई और इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता है बिकॉज वह फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है। विनिंग न्यू बिजनेसेस, वह नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उसको ज़्यादा मिलेंगी। एंड रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क अवॉइडेंस किस टर्म में? लाइक लॉ सूट्स, अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी लॉज बनाए गए हैं उसके लिए बिजनेस एक्टिविटीज के लिए उनको फॉलो नहीं करता तो लॉ सूट्स उसके अंगेंस्ट ज़्यादा होते हैं, वह कानूनी मुकदमों में ज़्यादा फंसता है। लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, लेबर लॉज हैं। लेकिन वह अगर उन लॉज को अबाइड करता है, उनके अनुसार काम कर रहा है, तो जो लॉ सूट्स का रिस्क है वो कम हो जाता है। न्यू एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड टैक्सेस, जो भी एनवायरमेंटल रेगुलेशन है उनको फॉलो कर रहा है, टैक्सेस टाइम से पे किए जा रहे हैं, दैट विल लीड टू द प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर्स। सो दीज आर द CSR benefits, and the firm will get benefit, the firm will lead, it will lead to the profits of the organization in terms of reduced risk to operate in the market. जब एक ऑर्गेनाइजेशन ये CSR इनिशिएटिव्स फॉलो करता है और उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, मींस लॉज को वो फॉलो कर रहे हैं और उससे जो उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस है इंडस्ट्री में इंक्रीज हो रहा है, रिस्क कम हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉ सूट्स का और डिफरेंट तरह के जो लॉज हैं उनको अवॉइड करने का, तो वहाँ पर वह ऑर्गेनाइजेशन फ्रीली मार्केट में ऑपरेट कर सकता है। तो रिस्क कम हो जाता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क कम होता है तो वह उससे उसके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है। So in conclusion, we can say that CSR improve the profits. CSR lead to increase in the profits of a organization. So because CSR promotes respect for the company in the marketplace, which can result in higher sales, enhance employee loyalty, and attract better personnel to the firm. Also, CSR activities focusing on the sustainability issues may lower the cost and improve efficiencies as well. तो CSR एक फर्म के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है, प्रॉफिटेबिलिटी और CSR के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिकॉज CSR एक कंपनी की रिस्पेक्ट को इंक्रीज करता है, मार्केट प्लेस में जो उसकी रेपुटेशन है उसको इंक्रीज करता है, सेल्स इंक्रीज होती हैं, एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी, उनकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है और वह फर्म एफिशिएंटली एक लंबे समय तक मार्केट पे ऑपरेट कर सकती है।
I hope you must have enjoyed this video lecture. If this video is useful for you, please like the video and subscribe my YouTube channel and share it with your friends. Thanks for watching.